Hello everyone. So we are all ready to join our talk. So now I will connect with Charulata. Hello Hi everyone. Charulata. Hello Didi. Am I audible? Yes, you are audible. Am I audible? Yes Didi, sure. Yeah. Okay. So today we are going to discuss about fear for the future, right? So I would like you Yes. to start. Yes, sure. First of all, I'm very grateful that I got this opportunity. As me personally being a student, it is really imperative that I share my concerns regarding this pandemic situation. That what are the youth's concern right now? So, firstly, the prime concern that comes to our mind when we think about this situation is the uncertainty of the future, because the future is really looking grim for us right now, because there are also not any rigid and steadfast government proposals, or in fact, if you'll see, the UGC guidelines also keeps changing. So it is very difficult for us to grasp and adapt to this situation, as we are very confused and very unaware of what the future holds for us. True. True. And yes, Yes. and So also yeah, tell me. since exams, the situation of conducting exams, that is also holds a question mark over itself, because जब तक present batch pass out नहीं होगा, तब तक you cannot admit newer students. तो इसलिए भी हम लोग थोड़े से इनसिक्योर है इसको लेके, that what about the new admission procedures, और if exam होते भी है सितंबर में, we do not have the time, or the in fact जो लोग अभी घर वापस आ गए हॉस्टल से, अपने घर में है सब लोग, they do not have access to proper notes and proper books. तो कैसे एग्जाम देंगे सितंबर में? That is also an issue of concern. ट्रू ट्रू एक्चुअली मैं भी काफ़ी यंग लोगों से बात कर रही थी, तो उसी टाइम मैंने भी ये चीज़ देखा कि नॉर्मल जो बच्चे हैं जो क्लास 3-4 में पढ़ते हैं या 5-6 में पढ़ते हैं, दे आर लाइक समहाउ एंजॉयिंग ऑल्सो द टाइम. थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज दे आर नॉट दैट मैच्योर. Yeah. दे आर नॉट इन दैट No. एज दैट दे कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, राइट? But the students who are in graduations and in master, in fact, last day only I received call from Amity University, so they are doing this field work online. So now interns will join me, LUF, Little Umbrella Foundation, for doing field work through online. So it is a weird situation for everyone, because सोशल वर्क और फील्ड वर्क, सोशल वर्क का जो फील्ड वर्क है वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? Exactly. So No. it is definitely a very difficult situation, and a situation where you can feel demotivated. So since we've been planning for this topic, I was talking to few seniors and few people who are related to world economy and into academics, into colleges, universities. So my finding is those who are in the senior position, they are looking into this pandemic as a very good opportunity right now. Since we all are feeling कि हमको लग रहा है पता नहीं कल क्या होने वाला है, we are not very much sure, we are not motivated, but at the same time ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा opportunity है that we can prepare ourselves. For example, if someone is getting education on social work, right? For example, that person is doing graduation final year on social work. So this time when the exams are not sure कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, so apart from the exam study, we should first of all तो देखो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा, being in the age like we are youngsters, so we have to be self motivated. We cannot look forward into other motivation factors like college हो गया या teacher हो गया या parents हो गया. This is a high time. Pandemic is actually teaching us कि हम कैसे खुद को self motivated करें. So this is a high time that we need to feel self motivated. या सोच के कि अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है
तो हमें अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा. So this is a good time for study. Apart from like आप अगर social work कर रहे हो, आपके एग्जाम्स नहीं है, आपके टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ केस स्टडीज कर सकते हो. Not only on social work, depending on whatever course you are doing, you can do some case studies. And I remember that हमारी बात भी हो रही थी कि एग्जाम जो हो रहे हैं एक जेनरिक पास भी कर दिया जा रहा है. हाँ, है ना. एक जनरल पासिंग हो रही है. Yes, yes. तो दो स्टूडेंट who are like really good in study, they are feeling कि भाई हमें भी उसी लेवल पे देखा जाएगा जिन्होंने शायद स्टडी नहीं किया. So here we are coming with a very good opportunity कि आप इसी टाइम में खुद को प्रिपेयर करो कि अगर आपका कुछ भी सब्जेक्ट है उसको लेके आप कुछ प्रोजेक्ट प्लान करो, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ रिसर्च मॉड्यूल लेके आओ. So when you will be going for कुछ प्लेसमेंट के लिए आप जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, तो क्या होता है कि आप उसको दिखा सकते हो कि सी एट द पैंडेमिक टाइम इन 2020 व्हेन एवरीथिंग वाज लाइक दिस, सारा लॉकडाउन था. So apart from the study, this is the research module I have created, or this is the project I have created. So it will again do the credibility part. So the point, मोटा point जो है, अभी हमको self motivated होना पड़ेगा. And the second part, what you said कि कुछ बच्चे हैं जिनको अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, that's a very true fact. So उसमें अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आईटी मिनिस्ट्री में बहुत काम हो रहा है to reach out to the village and rural places through internet, because now this COVID situation, Charulata, has taught us many things कि हमारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे हमारा लैक है. हाँ, क्योंकि रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन है नहीं. Yes. तो इसलिए मैक्सिमम, जैसे मेरे कॉलेज में मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट इन द रिमोट विलेजेस. तो ये बहुत ही Absolutely. So somehow we need to understand that we are on a stage जहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपने लूपहोल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको वो अपनी तरफ से हैंडल आउट कर रहे हैं. हमको खुद को भी सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड सो दैट प्रोबेबली वी कैन ब्रिज अ गैप, थिंकिंग कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम एज एन अपॉर्चुनिटी लें और कुछ क्रिएट कर पाए. और आपने जो सेल्फ मोटिवेशन की बात कही, मैं उससे भी 100% मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने कोई इमीडिएट गोल नहीं है. जैसे हम लोग जैसे फ्रेमवर्क बना के चलते हैं कि ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जो पीएचडी जो भी करता है. तो अभी जो है, अभी एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसके वजह से कोई इमीडिएट गोल नहीं दिख रहा है कि इस ईयर कंप्लीट होगी भी डिग्री या नहीं होगी, या अगले साल भी इनफैक्ट होगी कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है. तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड यस, इंटर्नशिप बहुत ही वेलकम डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, क्योंकि वेदर स्टिपेंड के साथ हो या स्टिपेंड के साथ नहीं हो, लेकिन आप अगर इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो अभी इस समय, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपका रेज्यूमे भी स्ट्रांग होता है उससे. Absolutely, yes. Absolutely. So we can engage ourselves with, irrespective we are having internship programs in our college or not, we should always try to engage ourselves with several programs, because technically क्या है, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं. So अभी जैसे सोशल वर्क का भी अगर हम लोग अभी फील्ड वर्क ऑनलाइन कराएंगे, so we will be talking about many projects और many counseling sessions और many research module, जिसको हम ऑनलाइन मतलब ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं. अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम सेल्फ एनालिसिस कर सके, और जहाँ पे हमारे बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, उसको हम ठीक कर सके. डेफिनेटली स्टूडेंट होने के नाते वो एक मोटिवेशन फैक्टर मिस हो जाता है. अगर कल प्रोजेक्ट करना है, मतलब असाइनमेंट है और सबमिट करना है, तो हम फटाफट रात को कर लेते हैं. दिस इज हाउ वी ऑल वर्क, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. बट नाउ कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको खुद में लाना पड़ेगा. और I've been talking to the senior people, like those who are into 60s and 70s. So they are even now, Charulata, I'm telling you, even at this point of time, they are very motivated and very like looking forward for the opportunities. कि अभी pandemic का situation है, so we can probably start some new projects and do something new. So it's very good time for us to learn from them.
क्योंकि उनके टाइम में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके टाइम में आपको पता भी होगा शायद कि हम जो बनारस में बीएचयू में पढ़ते थे तो कभी होता था कि एग्जाम नहीं होता था, कुछ ऐसे किसी से अनसर्टिनिटी हो जाता था। पहले के जमाने में बहुत ऐसी चीजें होती थी, तो उनका एग्जाम रुक जाता था, बट वो उस तरीके से डिमोटिवेटेड नहीं होते थे। तो हमें भी थोड़ा थोड़ा सीखना है इसमें। एग्जैक्टली। मैं इसके बाद इकोनॉमी पे आना चाहूंगी, बिकॉज ऑलरेडी कंट्री का इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन में ही चल रहा था, एंड जीडीपी की हालत सबको पता है। तो अभी जो पैंडेमिक ये क्राइसिस हुई है, इसके बाद सारे प्राइम इकोनॉमिस्ट ने यही स्पेक्यूलेट किया है कि और ज्यादा डाउनफॉल होगा इकोनॉमी में। इसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि और ज्यादा डाउनफॉल होने वाला है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी लाइमलाइट में आ जाता है कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू इतना ज्यादा पहले से ही बढ़ा हुआ था, और अभी पैंडेमिक के बाद क्या होगा, बिकॉज यूथ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो वन ऑफ द बिगेस्ट है, एंड 2040 तक यूथ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को क्रॉस करने वाली है, इतनी ज्यादा बूमिंग पॉपुलेशन है। तो इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू सामने आता है उसके लिए क्या करना चाहिए दीदी? यस, बिकॉज ये भी है कि जैसे स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये सब एकदम ही अभी स्टॉप हो गई है, एंड पता नहीं कब फिर से रिवाइव होगा। एंड ये सब में क्या होता था, स्पेशली इन सेक्टर्स में हम लोग देखे हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ही अगर हम लोग देख ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जनरली। एंड अभी जब पैंडेमिक सिचुएशन में उन लोग को कट शॉर्ट कर दिया जा रहा है, एंड जिन लोग का एटलीस्ट 5 years कंप्लीट हो चुका है जॉब में, उन लोग को रखा जा रहा है, बाकी लोग को कट शॉर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या कैसे टैकल करना चाहिए इस प्रॉब्लम? यस, सो इसको एक वन लाइन में मैं बताना चाहती हूँ कि नो जॉब अपॉर्चुनिटी is actually an opportunity to create a job. So it is a very good time to create job, to be into entrepreneurship. हमें ये इस चीज को अभी सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि we cannot move forward in the like पुराना जो हमारा चला आ रहा था ट्रेडिशनल फॉर्मेट, उसमें हम अभी नहीं फिट इन हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड समय को समझना पड़ेगा, टाइम को समझना पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड हम खुद ही जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक हॉस्पिटल से एक हमारे जाने माने हैं, शी इज गायनी, उनको जॉब लॉस हो गया, उनको जॉब से निकाल दिया गया, ये कह के कि हॉस्पिटल में अभी मतलब सैलरी देने की स्थिति में नहीं है हॉस्पिटल। सो आई वाज थिंकिंग कि अरे अभी अगर डॉक्टर की जॉब जा रही है तो बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में तो प्रोबेबली डॉक्टर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल पे है जहाँ पे इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने केसेस हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो द सेकेंड चीज जो मुझे समझ में आई कि सिंस शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और अभी उसके पास जॉब नहीं है, तो व्हाट शी विल डू नेक्स्ट, या तो वो जॉब ढूंढेगी, फर्स्ट ऑप्शन, तो हो सकता है उसको जॉब ना भी मिले, ये भी हम मान के चलते हैं, हो सकता है नहीं मिले। सेकेंड ऑप्शन, नाउ शी विल क्रिएट हर ओन, क्योंकि वो खाली तो नहीं बैठेगी, वो क्या करेगी, वो अपना नर्सिंग होम खोलेगी या क्लिनिक खोलेगी, ठीक है। तो अगर वो अपना क्लिनिक खोलती है, सो नॉट ओनली शी इज गेटिंग जॉब फॉर हर, शी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मेनी पीपल। लाइक अगर वो एक नर्सिंग होम छोटा सा सेटअप भी करती है तो 4-5 लोग उसको चाहिए होगा, जैसे नर्स चाहिए होंगे, पियोन चाहिए होंगे। सो यू आर नॉट ओनली डूइंग गुड फॉर यू, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग समथिंग, वो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। हाँ, और ज्यादा क्रिएट करता है। सो यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो लोग भी सुन रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज एंड हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड द प्रोबेबिलिटी जो है अभी वो हो सकता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नहीं है ज्यादा, होटल और टूरिज्म में ज्यादा नहीं है, बट फ्यूचर इज हेल्थ केयर इज फ्यूचर। बिकॉज अभी कोविड-19 के टाइम पे हम सबने देखा ग्लोबली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, ग्लोबली वी आर far away from to a correct picture of healthcare. Globally भी आप देखोगे, अगर यूएस की भी बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर इतना डेवलप नहीं था कि वो कोविड-19 को हैंडल कर पाए, बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री।
सो हेल्थ केयर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जगह है और बहुत कुछ करना है हेल्थ केयर में. So I'm coming to the point. I'm trying to give some way out कि अगर आप entrepreneurship को सोचते हो या समझते हो या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी एक्चुअली है आफ्टर पेंडेमिक. So first, healthcare is very important. So we can create job in healthcare sector and टेक्नोलॉजी में अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं. बहुत पीछे हैं. तो टेक्नोलॉजी को भी हम कैसे यूज में ला सकते हैं, कैसे हमारा आउटरीच बढ़ा सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन हम कह सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है. देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन. ऑनलाइन कंसल्टेशन इज अ फ्यूचर. In this pandemic situation, not everyone is capable of going to the hospital. People are very scared of doing that. तो गवर्नमेंट का क्या रूल था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन वाज नॉट लीगली परमिसिबल नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने परमिशन कर दिया है. सो ऑनलाइन कंसल्टेशन इज अ फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली एक हॉस्पिटल पे आप एक गिवन नंबर ऑफ डॉक्टर को हायर कर सकते हो. एक गिवन नंबर ऑफ मान लो फॉर HR के लिए आप गिवन नंबर को शायद 2-3 लोगों को, अगर सेटअप आपका छोटा है तो शायद 2 HR को आप हायर कर रहे हो, ऑपरेशन के लिए 2 लोगों को हायर कर रहे हो. लेकिन अगर आप ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करते हो, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट जॉब फॉर n नंबर ऑफ पीपल, राइट. और इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है. नॉट ओनली डॉक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर डॉक्टर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल प्रोबेबली उन्होंने BCA किया है या MCA किया है. सो दे डोंट नीड टू गो इनटू एक जिसको कहते हैं ना वो टिपिकल जॉब वाले में कि इंजीनियरिंग ही करना है या कॉर्पोरेट में जॉब करना है. दे कैन क्रिएट जॉब. और वी नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रेजुएशन किया है साइंस से, BSc किया, they can always go for pharmaceutical के लिए, ऑनलाइन pharmaceutical के लिए वो जा सकते हैं. Laboratory is a very good opportunity for now. So एक बंदा जो BSc किया है, साइंस को लेके पढ़ा है, MSc किया है, they can go for entrepreneurship on pharmaceutical or laboratory in collaboration with someone who has done for example BBA or MBA, and again he can make a team with people जिन्होंने शायद नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है. दे कैन हेल्प विद द ऑपरेशन पार्ट. Because yes, Didi, because there's this misconception usually that entrepreneurship can only be taken up by individuals who have that particular degree of business or MBA. So this is not the case. I would like to say to people that this is not the case. Yes, absolutely. आप entrepreneur किसी भी फील्ड में बन सकते हो. अगर आपका रेपर्टोयर उस फील्ड में स्ट्रांग है तो आप किसी भी फील्ड में entrepreneur बन सकते हो. What is important is delegating duties to the suitable individuals. Yes. बहुत लोगों को हो सकता है entrepreneurship में थोड़ा confusion हो, क्योंकि the word is quite big, थोड़ा complicated भी है. So those who are not into probably in management or commerce, तो उनको शायद थोड़ा कंफ्यूजन है. तो मैं बता देती हूँ, entrepreneurship is the ability to develop and organize and run a business and create generate money, generate profit out of it. So entrepreneurship is having a platform to generate innovative methodology. आप कुछ नया करते हो, आप कुछ इनोवेटिव करते हो. बिजनेस में और entrepreneurship में डिफरेंस ये है कि बिजनेस नॉर्मल चलता है. जैसे किसी का साड़ी का दुकान है, आपको पसंद आया, आपने भी साड़ी का दुकान खोल लिया. सो आप क्या कर रहे हो, एक जो पुराना एक चल रहा है उसी को लेके आ रहे हो. लेकिन हो सकता है आप कुछ नया क्रिएट कर सकती हो कि आपने कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसे फैब इंडिया ने किया था. फैब इंडिया ने जितने भी वो हैं, जितने भी रूरल एरिया में जो विमेन हैं, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और वो जो ट्रेडिशनल उनके वीविंग स्टाइल है और ट्रेडिशनल उनका हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, उनको वो लेके आए. एंड नाउ फैब इंडिया इज अ ब्रांड. तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इसमें कुछ भी ऐसा मैंडेट, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब. नॉर्मली अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि देखा जाता है कि अच्छा आपने कॉमर्स किया है या साइंस लेके पढ़ा है या आप क्या लेके पढ़ रहे हो, उसके रिलेटिवली आपको जॉब मिलता है. लेकिन अगर आप बिजनेस में आते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज completely up to you what you are going to do. You are the boss. Exactly. और एक्चुअली आजकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड है, इसे बोलते हैं रिटर्न टू नेचर. तो अभी वो नेचर में ही सारी चीजें रिटर्न हो गई है, बिकॉज देयर इज अ
global demand of handmade products. So that is a Correct. very good employment opportunity. Absolutely, absolutely. And another part, I was thinking, those who are doing like normal subject graduation, for example, हिंदी लेके या इंग्लिश लेके या for मतलब कुछ और भी सब्जेक्ट लेके प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, they can always go for counseling centers और mediation center. इसका भी फील्ड का मैं बता रही हूँ कैसे होता है कि देयर आर मेनी केसेस इन द सेक्टर ऑफ लॉ. बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म्स अभी हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो केस पड़ा रह जाता है, उसमें कुछ होता नहीं है. एंड लॉयर्स आर मोस्टली, क्या होता है कि लॉयर्स आर वेरी कॉस्टली. आप अगर एक लॉयर के साथ बैठने भी जाओ तो उसका भी आपको एक मोटा अमाउंट देना पड़ता है, और नॉट नेसेसरली आप उस केस को फॉलो कर रहे हो या उसी लॉयर को हायर करते हो. सो हियर अगर आप अच्छे से एक रिसर्च वर्क करते हो, अगर आप अच्छे से क्योंकि अभी देखो चारुलता ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, you can go for very good study, but you always need to have, being a graduation student or master's student, you always need to have mentorship. And this mentorship doesn't come under the tree of only college, कि अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर है या लेक्चरर है, they only can be your mentor. Your a person who is residing next to your door, और वो आपके पड़ोसी हैं लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, so you can learn from him also. So we have to look forward to people कि कौन क्या कर रहा है, उनसे आप बात कीजिए. अगर आपसे कोई सीनियर है, अगर आपकी कोई रिलेटिव है, वो किसी बिजनेस वर्ल्ड में कुछ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर लॉ की मैं बात कर रही हूँ तो वो लॉयर हैं, लॉ पे वो कर रहे हैं, तो आप जब ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हो साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग भी उनसे आप कर सकते हो ऑन फोन. उसके बाद यू कैन कम अप विद काउंसलिंग सेंटर और मेडिएशन सेंटर विच विल बी मोर जेनरिक, कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसमें क्रिएट करके, रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू द लॉयर, आप मीडिएशन सेंटर पे आ सकते हो या काउंसलिंग सेंटर पे आ सकते हो. तो वहां पे आप उनको, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ और मेरे साथ आप हो, हम लोगों ने इतना अच्छा स्टडी करके रखा है कि फॉर एग्जांपल XYZ इज कमिंग, तो वी कैन गिव ऑप्शंस टू देम कि देखो ये सिचुएशन है, इसमें आप ये ऑप्ट कर सकते हो. टू दो हु आर नॉट इनटू, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है, आपने खुद ही कहा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और उतने ही ज्यादा केसेस हैं और उतनी ही ज्यादा लेस पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे वो पे कर सके. सो जरूरी नहीं कि आप पर सिटिंग 20,000 रुपए लो, आप और एक बहुत ही जेनरस अमाउंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी भी एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होती है और सामने वाले को भी आप एक अच्छा ऑफर कर रहे हो, है ना. दीदी मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी दैट एज हैज बीन स्पेक्यूलेटेड दैट आफ्टर पैंडेमिक बहुत ह्यूज इन्फ्लक्स, अर्बन इन्फ्लक्स हो सकता है माइग्रेटर्स का फ्रॉम द रूरल एरियाज. तो जैसा कि आपने बोला दैट एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज खोले अपने आप से एंड दे ट्राई टू इम्बाइब दैट कल्चर इन देमसेल्व्स. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी दैट मैक्सिमम रूरल एरिया से जो लोग आते हैं उन लोग के पास उतना नो हाउ नहीं होता है, like how to cope up in urban areas और how to develop themselves और कैसे challenges को face करें. और अभी तो challenges और बढ़ने वाली है pandemic के बाद. तो आपका ये आपका सजेशन क्या यही होगा कि उन लोग को भी डेलीगेट करें वेरियस ड्यूटीज में, जैसे आपने हेल्थ केयर के बारे में बताया, तो अगर कोई हेल्थ केयर में जाता है तो दे शुड एटलीस्ट कंसिडर टेकिंग अप दैट चंक अंडर देमसेल्व्स, और उन लोग का लाइक ट्रेनिंग पीरियड भी चलता रहेगा, एक अप्रेंटिसशिप भी होती है एंड उन लोग का एक दैट कल्चर भी इम्बाइब होता रहता है धीरे धीरे अंदर. तो आपका क्या यही सजेशन होगा ना? तो मैं जानना चाह रही हूँ. Apart from that, see, there are people who are not that much privileged, those who are residing into rural places, गांव में रहते हैं, accessibility नहीं है, probably pandemic के बाद they will return back to the cities, या हो सकता है नहीं भी आते हैं. तो अभी उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यंगस्टर, आप लोग जो अभी हमारे न्यू जनरेशन हो, आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक तो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रहा है, सेकेंड आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ you are privileged, you have a good family, you have good like monetary support, you have all the access to the internet and everything. So अगर आपके जैसे 4 लोग मिलते हो और आपने किसी एक फ्रेंड को लिया जो रूरल में है,
उसको आपने सपोर्ट किया और करके आप इसको एक ऐसा बेस आपने क्रिएट किया. आई ऑलवेज प्रेफर, क्योंकि चारुलता इसके पहले भी मैंने बहुत जगह पे बोला है कि फॉरेन कंट्रीज में होता है, हमारे यहाँ पे कम होता है, राउंड टेबल नेटवर्किंग. Networking is very important and we should start it from graduation level only. कि आप बहुत अच्छा नेटवर्किंग क्रिएट करो, आप अपना सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएट करो. और राउंड टेबल नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप हो, आपके लाइक माइंडेड जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ जिसका आपको लेवल मैच करता होगा, उनके साथ आप 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाइए. ग्रुप बना के यू टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, struggles and scenario. उसके बाद you can always come up with some great solutions. और के साथ ही at the same time you can help others. If you are having a group of 4 or 6 people who are privileged, you can always support the other person. Like एक और दो इंसान जो शायद वैसे privileged नहीं, आप उनको support कर सकते हैं. तो this is how I feel कि हम ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके we can bring change. We always we should not think in a way कि अच्छा there are NGOs and there are government who is doing. If we individual can take up this challenge, no, because सबके साथ ये जो तूफान अभी आया COVID-19 का, इसको सबने हैम्पर किया, सबकी लाइफ को हैम्पर किया. और सीइंग ऑन द फेसबुक और सोशल मीडिया न्यूज चैनल, वी वर ऑल सैड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल वर्कर सैड थे या फिर गवर्नमेंट सैड थी, वी ऑल वर सैड. तो जब हमें इतना दुख होता है तो वी शुड ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. If we even bring one underprivileged person under our umbrella, then I feel that a huge change can be brought upon. Absolutely. Absolutely. Yes. तो दीदी अगर अगर अब्रॉड स्टडीज की बात करें अभी, तो बहुत लोगों का केपेबल है, क्रेडिबल है, सब कुछ है, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अब्रॉड स्टडीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रही है. बिकॉज ऑफ फर्स्टली तो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने वाले हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट कंसर्न, फिलहाल इस टाइम पे इट इज रियली डिफिकल्ट टू अक्वायर एजुकेशनल लोन्स, जिसके बेसिस पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं. एंड सेकेंडली एक मॉनेटरी कंसर्न भी रहता है कि अभी जैसे पर्सनली मेरे फैमिली की अगर मैं बात कहूँ, तो ये मेरे अराउंड भी मैक्सिमम लोगों के हाउस होल्ड्स में सबके सैलरीज हाफ या उससे भी कम मिल रहे हैं. Absolutely, absolutely. Yes. तो फाइनेंशियल सिचुएशन आई डोंट थिंक किसी भी फैमिली की एकदम फुल फ्लेजेड जैसे पहले थी वैसी है, किसी भी फैमिली की नहीं है. तो इसमें जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में भी एक ऐसा हेसिटेशन या डाउट आता है कि whether he or she is capable to spend as much money as she was before. And अगर supposedly अगर अब्रॉड स्टडीज के लिए जाते भी हैं लोग, तो इसका भी चांस है कि री लॉकडाउन हो, अगर केसेस फिर से बढ़े या और ज्यादा पैंडेमिक सिचुएशन खराब हो, तो री लॉकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड इस सिनारियो में लोग वहीं पे स्टक हो जाएंगे. जो स्टूडेंट्स गए हैं अपने घर से अलग दूर, पैंडेमिक सिचुएशन में, लॉकडाउन में स्टक हो जाएंगे. अभी ही मेरे अराउंड मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस दूसरे सिटीज में स्टक है और बहुत ज्यादा अपसेट थे, कुछ दिन पहले डिप्रेस्ड हो गए थे. तो आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसको कैसे ग्रैपल करें? इसमें चारुलता मैं दो तीन एस्पेक्ट बोलना चाहूंगी. पहले तो आपने, सॉरी मैं मिस कर गई, आपने पहले भी पूछा था कि इकोनॉमी का क्या प्रिडिक्शन है. तो डेफिनेटली इकोनॉमी का प्रिडिक्शन, जैसे मेरे जितने लोगों से बात हुई या जो भी मैंने पढ़ा या थोड़ा समझा, तो डेफिनेटली ये ना एक 50-50 सिचुएशन है, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक रिसेशन आएगा, ये डाउनफॉल आएगा. डाउनफॉल डेफिनेटली आएगा. जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं डाउनफॉल नहीं आएगा, दे आर ऑल्सो सेइंग कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, दैट इज हैज टू बी देयर. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो फॉल कर जाएगा, कुछ लोगों का मानना है कि फॉल नहीं करेगा, क्योंकि प्रोबेबली गवर्नमेंट के पास, जो मैंने सुना सीनियर से और समझा, कि गवर्नमेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिचुएशन. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ कि कैसे कोप अप करेंगे, उसको उन्होंने प्लान कर रहे हैं अभी. तो देयर आर चांसेस कि नहीं होगा. प्लस एट द सेम टाइम ये डिपेंड, जिन्होंने जो 50% ने कहा कि नहीं होगा, वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स इवन अप टू द पीपल, हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, जैसे मैंने वो डॉक्टर की बात बताई,
अगर हम उसमें फास्ट रिएक्ट करते हैं अभी ये पेंडेमिक के लॉकडाउन टाइम में, अगर हम अच्छे तरीके से, तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई किसी का जॉब लॉस हुआ है, कोई जॉब करता है, वो लोग अगर इसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी समझ के, मार्केट रिसर्च करके अभी से अगर एक स्टार्टअप डाले, क्योंकि आप इस बात को समझो, अभी अगर डाउनफॉल आता भी है तो नॉर्मली अगर हम फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप में मुझे एक ऑफिस भी लेना है, तो ऑफिस का रेंट मुझे बहुत स्मॉलर अमाउंट पे मिलेगा इन कंपैरेटिवली पहले जितने अमाउंट पे मिल रहा था, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपने अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं। तो जो मकान मालिक है या लैंडलॉर्ड्स है, उनके पास भी एक स्ट्रगल है, तो उनको उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए। तो अभी अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है हमें कम अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट करना पड़े रादर देन जो पहले हमें करना पड़ता था। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग मोटिवेटेड हैं, कितने लोग अवेयर है इस सिचुएशन के बारे में। अगर अच्छे से एजुकेटेड पीपल इसको हैंडल आउट कर लेते हैं, सो देयर इज ए चांस कि वो सैचुरेशन एक पॉइंट आएगा, लेकिन वहां से उसको फिर हम वापस जगह पे लेके आ जाएंगे। और दूसरे लोग हैं जो इसको भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इवन जो हमारे नोबेल प्राइज विजेता हैं बैनर्जी, उनका एक मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि मनी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि मनी जनरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10 रुपया दिया, वो जाके 4 रुपए का बिस्किट खरीद लिया और 6 रुपए का शायद उसने फॉर एग्जाम्पल 6 रुपए का उसने जूस पी लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो 4 रुपए चला जाता है बिस्किट वाले के पास और 6 रुपए चला जाता है जूस वाले के पास, तो फिर वो वापस से जनरेट होता है। तो मनी ऐसे, मनी अर्न्स मनी, तो हम जितना पैसा लगाएंगे वापस उसी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का एक डेफिनेटली एक बहुत अहम हिस्सा है कि वो किस तरीके से हैंडल आउट करती है। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट अभी जैसे कि यहाँ पे मेरा भी थोड़ा कश्मकश है, क्योंकि एक तरफ से ये खबर आ रही है कि बैंक्स आर ओपन टू लोन, एट द सेम टाइम मुझे जब मैं नॉर्मल लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि सिंस सैलरी का कट आउट हो रहा है तो वो लोग लोन नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। तो ये दोनों तरीके की सिचुएशन है, एक यहाँ पे अपर लेवल पे बातें हो रही है कि लोन है, और जो ग्राउंड लेवल की बात है वहाँ पे लोन नहीं है। प्रोबेबली हो सकता है कुछ समय में वो सिचुएशन भी ठीक हो सकता है गवर्नमेंट इसमें भी लुक फॉरवर्ड करे और इस सिचुएशन को हैंडल करे। सो कम्प्लीटली ये इकोनॉमी वाला जो प्रेडिक्शन है वो पूरा एक 50-50 वाला सिचुएशन है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते कि यही होगा और ये नहीं भी होगा, ऐसा नहीं होगा। Yes, because along with loans, there was also some speculations and also some instances where the amount of the educational scholarships were either reduced or totally stopped. Okay. So बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो scholarship के basis पे ही education लेते हैं या abroad जाने की planning करते हैं। बिल्कुल। तो abroad, yes, अब्रॉड जाने के पॉइंट पे मैं कहूँगी दोज चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडीज, अगर आप लोन से कर रहे हो, डेट से कर रहे हो, सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम. If you are coming from a very privileged family where spending 20-25 lakhs doesn't make any difference in your family, so in that case this is okay. But if you are coming from a family like जो normal Indian family है, वहाँ से आप आते हो, तो this is not a good time. And please remember, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, I know this is a very sad part to think कि अगर मैंने सोचा होगा कि इस साल मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है और because of this pandemic I am not capable of going, so a year loss is a year learned. We need to understand Yeah. कि कहीं कुछ लॉस नहीं होता है. अगर वो बच्चे, चारुलता, कुछ बच्चे हैं जिनके ईयर लॉस हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में कम आया और ईयर लॉस हो गया, बट दैट डजंट मीन कि वो बच्चा लूजर है, राइट? हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर वजह से वो उस क्लास को पास नहीं कर पाया. तो अगर वो पास नहीं कर पाता है तो जब सेकेंड टाइम वो उसको रीस्टडी करता है, सो एक्चुअली ही और शी इज गेटिंग अ वाइडर स्पेस टू अंडरस्टैंड. वो और गहराई से उस चीज को समझने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है. दैट इज डिफरेंट कि हम लोग नहीं उस तरीके से यूज करते हैं. अगर साल हमारा बैक आ जाता है तो हम ज्यादातर घूमने फिरने में लगाते हैं. दैट इज आवर फ्लॉ अगर हम ये कर रहे हैं. बट एक्चुअली अगर हमें लॉस होता है तो उसमें हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम उसको रीडिफाइन कर सके, रीलर्न कर सके. सो आई हैड दिस ईयर लॉस इज अ ईयर लर्न. तो आप इसको ऐसे बिल्कुल भी मत लीजिए कि ये साल आपका लॉस हो रहा है. And I would also like to say that recently I got associated with a mental health initiative, and over there a person expressed
that she was very devastated and upset because she wanted to pursue cinematography, and she couldn't do that because there weren't any reputed schools in India of cinematography, and she wanted to go abroad, but she does not have the proper monetary means and financial support. So what I would like to say to such people is that अब्रॉड स्टडी करना ही आपके सक्सेस का पैरामीटर नहीं है. Absolutely. लाइक हाँ, अगर आप लाइक मैक्सिमम अगर आप इंडिया के पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करो, यूथ पॉपुलेशन को, तो कितना परसेंट, बहुत कम परसेंट उसका अब्रॉड जाके स्टडी करता है. मैक्सिमम लोग इंडिया में ही एजुकेशन लेते हैं एंड सक्सेसफुल भी होते हैं आगे जाके. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपका बाय एनी चांस अगर आपका अब्रॉड जाने का चांस मिस होता है, आप नहीं जा पाते हो, अभी मॉनेटरी सिचुएशन जैसी है उसके वजह से, या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली किसी भी रीजन से, लाइक तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटीज उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ी है किसी यूनिवर्सिटी से ज्यादा. ऑब्वियसली उसके अपने प्रोस होते हैं किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का, लेकिन आपका लाइफ में आगे चल के आपका सक्सेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ कि आप अब्रॉड जाके स्टडी किए हो या नहीं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए कि आप हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम करते हैं या फिर ये चला आ रहा है कि हम ना उसको पैरामीटर फिक्स कर देते हैं कि अगर आप ऐसे XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या आपने अच्छा किया, और नहीं अगर आप कर पाते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो. मैं खुद की बात बताती हूँ. मेरी खुद की दीदी है, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. शी ऑप्ट आई थिंक साइंस और मैथ्स में उसके 100 में 98 और 99 थे 12th में, लेकिन शी कुड नेवर गेट एडमिशन इन BHU. उन्होंने 5 साल ट्राई किया, 5 साल में 1 साल भी उनका नहीं हुआ. बट दैट डजंट मेक हर लेसर, नो. उसका इंटेलिजेंस लेवल तो सेम ही है. आज भी शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज डूइंग वेरी वेल. बट हम क्या करते हैं, वो पैरामीटर फिक्स कर देते हैं. सो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड, बिकॉज लाइफ यू नो इज नॉट अबाउट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और the books we are reading or the environment we are having right now. Life is more than that. The learning you are going to get from the university, that is going to help you, and irrespective of the university or college, wherever you are going to learn life skills. आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा दे. जो सिनेमेटोग्राफर की बात आपने कही, तो इफ शी इज नॉट केपेबल ऑफ गोइंग राइट नाउ, अभी नहीं जा पा रही है, तो शी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन हर सेल्फ. सिनेमेटोग्राफी में अभी बहुत सारा कुछ ऑनलाइन स्टफ्स है, उसको आप स्टडी कर सकते हो, आप अच्छे फिल्म देख सकते हो, उससे आप लर्न करो, आप कुछ अपना रिसर्च. आई ऑल्सो रेकमेंडेड हर कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिनेमेटोग्राफी स्कूल्स नहीं है, काफी स्कूल्स है एंड उसके एल्युमनाई जो है वो काफी रेप्यूटेड है और अभी फील्ड में, इंडस्ट्री में काम भी कर रहा है. बिल्कुल. तो हाँ, तो इसीलिए मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर अब्रॉड ना जा पाए तो उससे इतना ज्यादा खुद को डीमोटिवेट ना कर ले एंड अपने खुद के एबिलिटीज पे डाउट ना करना स्टार्ट करें. फिर ये वाला पॉइंट भी आ जाता है कि अगर आप अब्रॉड नहीं जाते हो, इंडिया में स्टडी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इंडिया में, हमारे कंट्री में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. तो एक्चुअली यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी आल्सो. टोटली. या दीदी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि टेक्नोलॉजी ग्रास्प करना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे सिचुएशन अभी जैसे है सिचुएशन, उसकी बहुत जरूरी है. तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप कैसे इसको सजेस्ट करेंगी, क्योंकि जैसे पर्सनली मेरे यूनिवर्सिटी में लाइक हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे, लाइक बिकॉज some students are also against the idea and maximum professors are also against the idea कि हम लोग वैसे नहीं कर पाएंगे, because all we have done till now is face to face classroom interaction and classroom environment. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए वो ऐसे ऑनलाइन इंटरेक्शन करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि हाउ शुड बी पुट अप क्वेश्चंस और हाउ कैन बी क्लियर आवर डाउट्स प्रॉपर्ली ऐसे ऑनलाइन सिनेरियो में. तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? यस, यहाँ पे देखो दो चीजें हैं. एक तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ओपन टू द चेंज. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन आवर लाइफ. चेंज एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें बदलती रहेगी लेकिन बदलाव आता रहेगा, हर चीज में बदलाव आता रहेगा. ठीक है. और ये जो भी पैंडेमिक का सिचुएशन है चारुलता, वो एक ऐसा सिचुएशन है, उसको ना आपने क्रिएट किया, ना हमने क्रिएट किया, ना गवर्नमेंट ने क्रिएट किया. वो एक नेचुरल कैलामिटी है.
जो क्रिएट हो गई है। तो रादर देन, मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सपेक्टिव, कि उसको लेके हम सोचे और सोचे नहीं पहले तो ऐसे होता था, अभी ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। डेफिनेटली वो करने में प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आप क्लासरूम में बैठ के जो स्टडी करते हो और अभी जो स्टडी करोगे उसमें फर्क होगा, उसमें क्वालिटी का थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि शायद वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी। बट इट ऑलवेज गुड कि आप सरेंडर कर रहे हो, इससे अच्छा कि आप कुछ कर रहे हो। आपके बिल्कुल भी क्लासेस नहीं हो रहे, आपकी लाइफ सिर्फ एक पैंडेमिक की वजह से कहीं पे थम जाती है। तो अगर आपकी लाइफ थम जा रही है तो क्या हो रहा है कि आपका सिर्फ स्टडी नहीं थम रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ये जो आपने डिमोटिवेशन वाला फैक्टर बोला ना, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका स्टडी नहीं हो रहा है। और जब डिमोटिवेशन आता है उसके साथ आ रही है एंजाइटी, उसके साथ आ रहा है डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें आ रही है। लेकिन आप अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ, आप इतना अच्छा म्यूजिक को लेके इन्वॉल्व हो, आप इतने सारे प्रोग्राम्स कर रहे हो लाइव, और आज हम लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, तो खुद को मतलब कनेक्ट रखना और खुद को इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली अगर कॉलेज में स्टडी नहीं हो रही, अगर कॉलेज इज नॉट अलाउइंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासेस, or there are few people in your student fraternity also who are not going with this, you can always come up with combined study। अगर हम लोग स्कूल में या कॉलेज में combined study करते थे, you can make a group of people जो आपके साथ ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है, और आप सब साथ में मिलके 3 लोग 4 लोग 5 लोग या 2 लोग भी है, आप अगर 2 लोग का ग्रुप स्टार्ट करते हो, मान लो आप हो और आपके साथ कोई और एक फ्रेंड है, आप जैसे ही स्टार्ट करोगे और आप फ्रेंड्स के साथ बात करना शुरू करोगे कि अच्छा ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने ऑनलाइन भी रिसर्च किया और हमने डिस्कस भी किया, नाउ वी हैव केम अप विद सम गुड थिंग्स, तो फिर तीसरे को भी लगेगा अरे चारुलता और उसने तो फिर कहा तो हम भी कर सकते हैं, सो प्रोबेबली द थर्ड पर्सन विल आल्सो ज्वाइन, देन द फोर्थ पर्सन विल आल्सो ज्वाइन, राइट। सो ऐसे करके आप कंबाइन स्टडी कर सकते हो, और ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो या मैं सोचती हूँ कि यार मेरा फ्रेंड तो नहीं राजी हो रहा है या XYZ नहीं राजी हो रहा है, you should always be very prepared for taking up the initiative। आप खुद इनिशिएटिव लो। सो इसमें क्या होगा कि आपका जो एक मैनेजमेंट स्किल होता है ना, लीडरशिप स्किल होता है, वो डेवलप करेगा। नॉट ओनली ये पैंडेमिक में आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अगर आप इनिशिएटिव को क्रिएट भी करते हो तो आप एक लीडरशिप स्टेज पे आ रहे हो जहाँ पे आप सबको हैंडल कर रहे हो, सबको मोटिवेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हो। Yes, because I think now is a threshold कि online studying is looking better than not studying at all. Yes, तो हम लोग हाँ कुछ भी ना करें, उससे अच्छा कि एटलीस्ट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा मोल्ड करने की खुद को या थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें सब लोग। yes, because we have to be very flexible, because अभी तक देखो, अगर ये COVID-19 का सिचुएशन फॉर एग्जांपल 2 months या 3 months के लिए होता, so it could be understandable कि हाँ ठीक है चलो 2-3 महीने के लिए हमने पढ़ाई नहीं की। Now it is going like, अगर आप जानते हो कि COVID-19 का पहला जो स्टार्टअप हुआ था वो शायद लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में से इसका एक शुरू हो गया था, तो अभी ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है 1 साल ही होने वाला है। अभी हम लोग अगस्त जुलाई में हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दी कुछ होने वाला है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप कुछ कर रहे हो, और चेंज को एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स ऑल्सो, फॉर द फैकल्टी ऑल्सो, फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। वी नीड टू लर्न दैट चेंज, एंड प्रोबेबली इट्स अ कॉल फ्रॉम द नेचर ऑल्सो कि हम टेक्नोलॉजी को और अच्छे से ऑप्ट करें। दीदी ऐसे सिचुएशन में जैसे हम लोग को अगर डिग्री मिलती भी है हमारी, जैसे हम लोग को जैसे इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स जो है उन लोग को तो असाइनमेंट या इंटरनल या पास्ट सेमेस्टर्स जो हुए हैं उसके बेसिस पर डिग्री मिली, और अभी यूजीसी के रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि सितंबर में फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, बट उसमें भी कम से कम सिलेबस में और कम से कम मैटर के साथ एग्जाम होंगे। तो इसके बाद जो डिग्री मिलेगी उसकी कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे क्लासेस, सिंपली असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं या 15 दिन में मगअप करके एग्जाम दे दे रहे हैं जो सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जो डिग्री है उसकी कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है कि हम लोग एक्चुअली कुछ सीख रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग दैट डिग्री, कि डिग्री मिले हम लोग को इसलिए ये सब कर रहे हैं। और मोर ओवर जब फ्यूचर में उस डिग्री को लेके हम लोग जॉब्स इंटरव्यूज के लिए जाते हैं
तो इंटरव्यूअर्स सबसे पहले ये देखेंगे कि अच्छा इनको ये डिग्री 2020 या 2021 इस ईयर गैप में मिली है, तो उनके दिमाग में नेचुरली एक डाउट क्रीप अप करेगा, अगर सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जज करना हो तो कि ये कितना ज्यादा क्रेडिबल इंसान है और कितना ज्यादा इफेक्टिव बंदा है, क्योंकि इसको उस दौरान डिग्री मिली है जब सबको एक जनरल मार्किंग मिली और सबको पास करा दिया गया है। तो एक्चुअली क्रेडिबल है या जस्ट एक चंक को बिलोंग करता है, ये कैसे डिटरमिन करेंगे वो लोग? देखो, इसमें भी दो चीजें हैं। पहले तो क्रेडिबिलिटी जो होता है वो हमें खुद को क्रिएट करना पड़ता है। दो स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क लेके आते हैं, तो वो दे वॉक सम एक्स्ट्रा माइल्स इन कंपेयर टू दोस्त जो नॉर्मल पढ़ाई करके जेनरिक पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। इफ यू आर रियली वांटिंग, अगर आपको सच में लगता है कि जब मैं जॉब में जाऊं, प्लेसमेंट के लिए जाऊं, तो वो जेनरिक मोशन मेरे ऊपर भी ना लगे कि मैंने तो ऐसे ही पास कर लिया, तो उसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉक अ लिटिल एक्स्ट्रा माइल्स, कि आपका जो भी कोर्स है या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ आपने कुछ स्किल डेवलपमेंट किया। क्योंकि अभी का मैं सिनेरियो आपको बताऊं, जब प्लेसमेंट के लिए आज 2021 में लोग जाएंगे या 2022 में जाएंगे, जो आपके प्लेसमेंट सेल में होगा उनको भी अच्छे से पता है कि 2020 में सिनेरियो क्या था, उनको भी पता होगा ये चीज, राइट। तो अब वो बंदा जो भी आपका लेगा, काउंसलिंग लेगा या एग्जाम लेगा या इंटरव्यू लेगा, वो ये चीज देखेगा कि ठीक है, अगर 2020 में ये सिनेरियो था इस इंसान के साथ, हम सबके साथ, तो सिर्फ अपने पढ़ाई के बावजूद इसने क्या स्किल डेवलप किया। क्योंकि अभी पेंडेमिक के बाद मैंने बार बार यही बोल रही हूँ कि लाइफ चेंज होने वाली है, परसेप्शन चेंज होने वाले हैं, सारी चीजों का नजरिया बदलने वाला है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। तो इसलिए हम खुद को कितना प्रिपेयर किए हैं। आपने अपना सर्टिफिकेट तो दिखाया कि हाँ मैंने ये पास कर लिया, इसके साथ एट द सेम टाइम मैंने ये अपने में स्किल डेवलपमेंट भी किया। इसके साथ मैंने जो मेरा टॉपिक था उसका मैंने एक रिसर्च मॉड्यूल्स बनाया, या मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, या मैंने कुछ थीसिस क्रिएट किया, कुछ मैंने क्रिएट किया, इनोवेट किया या क्रिएट किया। तो ऑटोमेटिक वो एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर देता है कि अच्छा उस बंदे ने या इस बच्चे ने उस टाइम को कितने अच्छे तरीके से यूज किया। तो इट्स ऑलवेज अप टू अस, क्योंकि जो एग्जाम लेगा या इंटरव्यू लेगा उसको पता है कि क्या सिचुएशन था। तो वो इंसान कभी उस चीज के लिए नहीं देखेगा। आप अगर बोलोगे कि कोविड के सिचुएशन में मैं तो जाके फील्ड वर्क कर रही थी, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कोई आपसे कि ऐसा करो। लेकिन आपको जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है या प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म को आप कितने अच्छे से यूज करते हो। इसमें मैं बताऊंगी कि जैसे होटल मैनेजमेंट में जो शेफ होते हैं, शेफ को एक स्पेसिफिक चीजें दिया जाता है। मान लो मैदा दे दिया गया, पानी दे दिया गया, चॉकलेट सिरप दे दिया गया और शायद थोड़ा सा रेसन दे दिया गया, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। अब 5 स्टूडेंट है, अब उन्हीं 5 चीजों से कौन कितना क्रिएटिव और कौन कितना डिलीशियस और कौन कितना अच्छा खाना बना लेता है, इसका मतलब सब लोग देखते हैं और उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। तो हमारी लाइफ में भी पैंडेमिक में यही है कि अभी सबके पास एकदम गिवन चीजें ही है, मतलब मोबाइल है और सेटअप है और यही सारी चीजें, और इसको हम कितना इफेक्टिव बना रहे हैं। इफेक्टिवली यूज। यस, सो दिस विल ऑलवेज हेल्प। तो एज अ स्टूडेंट मैं पर्सनली मतलब मेरे फेलो स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि बीइंग सेल्फ रिलायंट इज द नीड ऑफ द आवर। कि आप सिस्टम कैसा हो रहा है या कॉलेज अथॉरिटीज क्या डिसाइड करती है वो सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी नीड अभी ये है कि आप सेल्फ रिलायंट होके खुद को किस तरह से डेवलप कर रहे हो, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, rather than being depressed over what you don't have currently. Exactly, because you guys are the change makers. You guys are the youngster. So you have the platform, you have the opportunity, and you have the responsibility. I will always say कि socially conscious होना बहुत जरूरी है। So जो भी young बच्चे हैं वो सारे change makers हैं, आपकी responsibility है। तो ये time है, आपको खुद को responsible feel करना पड़ेगा और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं, कॉलेज क्या सोच रहे हैं। आप खुद के बारे में सोचो और think and innovate and create. तो दीदी थैंक यू फॉर लाइक क्लैरिफाइंग माई डाउट्स, बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस जो भी थे, बहुत सारे हैं जो अभी काफी डिप्रेस्ड हो गए हैं। एंड लाइक सिंस आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव, तो मुझे और ज्यादा ये सब
पता चल रहे हैं धीरे धीरे कि लॉकडाउन या पैंडेमिक किस तरीके से अफेक्ट किया यूथ को। तो आज का जो सेशन आपने ये लिया, आपने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हमारे। थैंक यू सो मच। मुझे भी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चारुलता। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे, आपसे बात करके वो सारे क्वेश्चंस मेरे भी क्लियर हुए, और मुझे लगता है शायद हमारे इस सेशन को देख के कुछ लोगों का अगर हेल्प हो पाए, कुछ लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो पाए, तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए भी खुशी की बात है। फेसबुक लाइव हमें करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए, इंस्टाग्राम लाइव करें। हो सकता है अगर ये लोगों को पसंद आता है तो हम फेसबुक लाइव भी करेंगे सेम टॉपिक को लेके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग और देख सकेंगे इसको। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय।